Hello everyone, I'm Ruchi Rathod and I welcome all of you in my YouTube channel. In this video, we are going to discuss with the electronics topic, that is Demorgan's theorem. This is very important and easy topic of the digital electronics that we will do it today. Okay, we will study Demorgan's theorem first and second law. Okay, first of all, these two theorem which is suggested by the De Morgan's, which is very important for the Boolean algebra. Okay, that is De Morgan first and the De Morgan second law. So here we will talk about these two laws, that is these two theorem one by one. Okay, so first of all we will talk about the first law. Okay, so before starting with that, let me give you a simple logic to remember the theorem of the De Morgan's. Okay, so what you have to remember is left hand side of this. Okay, first here we have the expression for the De Morgan's first theorem, so always remember the left hand side. Okay, that means as already we have discussed with the NAND and NOR gate. ओके, नैंड एंड नॉर गेट ऑलरेडी हमको पता है, हमने नैंड का एंड नॉर गेट का एक वीडियो में, दैट इज in my one of the previous video we have learned about the NAND and NOR gate. So what you have to remember is left hand side of this De Morgan's theorem of one of the theorem will be NAND and NOR. एक जो theorem होगा उसका left hand side NAND होगा एंड दूसरा NOR होगा. तो बेसिकली आपको NAND and NOR याद रखना है. ठीक है, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन लिखने आ गया तो राइट हैंड साइड का इजिली यू कैन राइट, एंड इफ यू नो द होल एक्सप्रेशन सो इजिली यू कैन एक्सप्लेन द De Morgan's whole theorem. Okay, so basically what you have to remember, left hand side can be either NAND and NOR of the De Morgan's theorem. This logic you have to remember. Okay, so see, in the first law, this is the expression for the De Morgan's first law. Okay, so here you can see that in the left hand side a dot b the whole complement is given to you. Okay, and it is the Boolean expression of the NAND gate. Okay, so in the right hand side, how I can write the right hand side if we know that left hand side is NAND. So what we can do is we can remove this complement. If you want to remove this whole complement, तो a को separate complement आ जाएगा, ठीक है, and b को separate complement आएगा. Okay, and now here we have dot, and also we have the complement of dot too. So what is the complement of dot? It will become plus. मतलब now instead of and I will write or. Okay, ठीक है, because complement of dot it will becomes plus. That is and का complement क्या हो जाएगा? और हो जाएगा. क्लियर है? तो यहाँ पे जब हम डॉट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो प्लस आ जाएगा. दैट मींस अब ये और गेट में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे. तो लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या मिलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और इसी को हम बोलते हैं बबल्ड और. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द बबल्ड और. ओके, सो वी विल से NAND विच इज इक्विवेलेंट टू द बबल्ड. हियर लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी हियर वी हैव द NAND गेट. ठीक है, वी हैव वेरिएबल्स का होल कॉम्प्लीमेंट, एंड द राइट हैंड साइड वी हैव और गेट विथ इन्वर्टेड इनपुट्स. यहाँ पे हमारे पास और गेट है प्लस, दैट इज ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? और गेट. वी हैव और गेट विथ इन्वर्टेड इनपुट्स. हियर यू कैन सी ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम, मतलब इनपुट्स जो है वो इन्वर्टेड फॉर्म में है. सो ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव इन्वर्टेड इनपुट्स ऑफ और गेट. ओके, एंड दिस इज नोन एज द बबल्ड और. सो दिस इज दिस फंक्शन वी कैन से इट इज अ function of NAND which is equivalent to the bubbled OR gate. I hope this is clear to you. Okay, now we will see how to write the statement for this first law. See, always remember, very easy to write the statement. What you have to remember is first you have to write the left hand side, then you have to write the right hand side. Okay, on the left hand side if you see that it is a dot b complement, so first use the common word. So here we have common, that is complement पहले, फिर common क्या है? डॉट, जो दोनों को ऐड कर रहा है टुगेदर. ठीक है, दोनों को कंबाइन कर रहा है. देन वी हैव ए एंड बी, दैट इज वेरिएबल. तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डॉट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है, वंस अगेन पहले कॉमन टर्म ले लो, पहले कॉम्प्लीमेंट, फिर रीड करेंगे प्रोडक्ट को, फिर वी विल रीड दैट ए एंड बी, दैट इज वेरिएबल्स. Okay, so how you will read? Complement of the product of the variables. See, complement of the product of the variables now is equal to, see, is equal to. अब राइट हैंड साइड में कॉमन क्या है? पहले प्लस है, और फिर उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट्स है, फिर क्या है? वेरिएबल्स. सो हियर वी विल रीड फर्स्ट एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? एडिशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स.
So as I told you earlier that if you know this statement boolean expression, that is इसका expression पता है theorem 1 का, then easily you can write the statement. अब इसको एक बार और read करते कैसे करोगे? Complement of the product of the variables is equal to the addition of the complements of the variables. Okay, always use first common word, then use the separate word, then easily you can write the definition. No need to behead this, just remember the expression, and with the help of expression you can write the statement. Now I hope statement is easy to you. Okay, and I have explained you already that left hand side which represents the AND gate, and right hand side it is representing the OR gate with the inverted input which is known as the bubbled OR. Therefore we can say the theorem 1, De Morgan's theorem 1, it is equivalent, it is known to be NAND, which is equivalent to the bubbled OR. ठीक है, I hope this is clear to you. Now we will see how to draw the diagram for this theorem. अब हम देखेंगे डायग्राम कैसे ड्रा करें. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में NAND है. NAND मतलब हमारे पास क्या है, A डॉट B दी होल कॉम्प्लीमेंट. राइट हैंड साइड बबल और मीन्स वी हैव A बार, B bar, and here plus we have this, we have on the right hand side. Okay, this is the expression. So first we will draw the left hand side A dot B bar. तो A dot B bar मतलब NAND का कैसा गेट ड्रॉ होता है, ऐसे लॉजिकल सिंबल ड्रॉ होता है NAND का. तो ड्रॉ कर दो. A and B टू इनपुट है, तो इन द इनपुट टर्मिनल वी हैव टू इनपुट्स A and B, and आउटपुट वी हैव सिंगल. दिस इज द NAND गेट, सिंपली यू हैव टू ड्रॉ. नाउ इट इज इक्विवेलेंट टू दी बबल डॉर. तो अब राइट हैंड साइड ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, पहले ए बार ड्रॉ करो, फिर बी बार करना है, फिर दोनों को ऐड करना है और गेट से. तो ए बार मतलब कैसे, नॉट गेट है, देयर विल बी वन नॉट गेट. तो यहाँ पे देखो एक नॉट गेट ड्रॉ हुआ. यहाँ पे बी बार दैट इज अनदर नॉट गेट विल कम. ओके, देन प्लस दैट इज और गेट विल कम, जो ये दोनों को ज्वाइन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक और गेट आ गया. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब यहाँ पे देखो, see first here we need a bar plus b bar, this we need ना at the output of right hand side. ठीक है, तो a bar कर दिया, देखो a input दिया, because of this not gate we will get a bar. यहाँ पे इनपुट B दिया, here we have connected one not gate, because of this we will get B complement. Okay, now here we have drawn a OR gate. Now see, one NOT gate output which is going to the first input of this OR gate, second NOT gate का जो आउटपुट है ये इसके second input में जा रहा है. I hope this is clear to you. ठीक है, तो ये A बार जो यहाँ पे आउटपुट था फर्स्ट NOT gate का, अब ये इनपुट की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पे जो आउटपुट है B बार, now this will work as a input for the second gate, second terminal of this OR gate. तो यहाँ पे एक इनपुट A बार मिल रहा है, दूसरा इनपुट B बार मिल रहा है, और OR गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के साथ. ठीक है, तो वी कैन राइट A बार प्लस B बार. So A bar plus B bar, that means first you have to draw one NOT gate to get A bar, then another NOT gate to get B complement, then you have to draw OR gate to combine these two gates, that is this two NOT gate. I hope this is clear to you. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड के लिए NAND का एक्सप्रेशन देख लो, राइट हैंड साइड के लिए बबल डॉर का, तो इजिली यू कैन ड्रॉ दिस. ओके, देन दिस डायग्राम, दिस बबल, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस. हियर वी हैव टू नॉट गेट एंड हियर वी हैव और, तो और का ड्रॉ कर दो, एंड नॉट गेट को हम ऐसा बबल दे सकते हैं यहाँ पे. दैट मीन्स और जब आपने दो इनपुट दिया A एंड B, तो ये जो गेट है इसको क्या इनपुट मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस इन्वर्जन, ये जो बबल है ये इन्वर्जन रिप्रेजेंट कर रहा है. बिकॉज ऑफ दिस बबल मतलब ये नॉट गेट एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके वजह से इसको एक इनपुट A बार मिलेगा, और जो दूसरा इनपुट है इसको क्या मिलेगा, B बार मिलेगा. ठीक है, और इसको जब हम इसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, प्लस लिखते हैं बीच में, तो A बार प्लस B बार. ठीक है, तो बबल, दिस इज नोन एज दी बबल डॉर. ये लॉजिकल सिंबल है बबल डॉर का, मीन्स हम ये जो सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया है इसी को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, like this we can draw. I hope this is clear to you. ठीक है, कि NAND which is equivalent to bubble door, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे. आई होप ये पार्ट में अब किसी को कुछ डाउट नहीं है. ठीक है, ओके. सो नाउ वी विल सी द ट्रूथ टेबल ऑफ द डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम. हम इसको वेरीफाई करेंगे ट्रूथ टेबल से, और अगर ट्रूथ टेबल में लेफ्ट हैंड साइड का जो आउटपुट है राइट हैंड साइड के आउटपुट से सेम हो गया, दैट मीन्स वी कैन से De Morgan's first theorem is verified. Therefore, we can say NAND which is equivalent to the bubble OR. So, let's start with the truth table of the De Morgan's first theorem. Okay. Okay, so here we will see the truth table for this verification of
फर्स्ट थियरम. ओके, दिस इज द थियरम, फर्स्ट थियरम का ये एक्सप्रेशन है. ओके, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट थियरम. तो इसको हम प्रूफ करेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे, फिर वी विल राइट द राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड आप जब a डॉट b द कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो, हाउ मेनी इनपुट्स वी हैव, a एंड b. सो हियर आई हैव रिटन 2 columns, for one for a and for b. Then we have a dot b the whole complement, then we have written here. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन ऐड वन मोर कॉलम फॉर द a डॉट b. आप a डॉट b के लिए एक कॉलम ऐड कर सकते हो. फिर जो भी यहाँ पे आंसर मिलेगा आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना, तो यू विल गेट दिस. ठीक है. यू कैन राइट दिस लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन इसको 4 कॉलम में भी लिख सकते हो, और इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ NAND गेट, सो यू कैन इजिली राइट इन दी 3 कॉलम. दैट इज अप टू यू. ओके, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम बाय राइटिंग दिस one. Okay, so here first a and b. So a and b, 2 inputs are there, so 4 combination will come. 2 raised to 2, in every lecture I'm explaining that this thing, how many combination will come for any kind of for any number of inputs. So here 4 combinations I have written. ठीक है, 0 and 1s के. Now a dot b the complement में क्या होता है, if all the inputs, that is NAND gate क्या बोलता है, if all the inputs are high, then output of NAND gate becomes low, and if any one of the input is low, the output becomes high. So you can see here in the last combination, only in the last condition we have all the inputs are high, so here we will get low, and for every combinations we will get high in output. Okay, so I hope this is clear to you. ठीक है. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड में क्या है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट. सो हियर वी हैव 2 इनपुट्स a and b. So a and b already we have written in the left hand side, so no need to write again a and b in the right hand side. You can use this. Okay, देन a बार b बार, मतलब a और b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमको. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉलम लिखेंगे, एक फॉर a बार एंड अदर फॉर द b कॉम्प्लीमेंट के लिए. ठीक है. अब ये कैसे आएगा, सिंपली आपको जो a है उसको एग्जैक्ट इन्वर्ट कर दो. मतलब यहाँ पे देखो, जो हमारा a में 0 है उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1. जहाँ पे हमारा 1 है उसके जगह पे 0, मतलब 1 को 0, 0 को 1 कर दो, तो यू विल गेट द a कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली वी विल गेट b कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, b जो मिला है आपको उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, यू विल गेट b बार. नाउ दिस what we have to do, here we have the first term that is a bar and second term that is b bar. So here we have done first and the second term. Now we have to do the plus of these two, मतलब ये दोनों का हमको और करना है. ठीक है, तो that is third column, a bar plus b bar, इसका और करना. तो what is the function of OR gate? In OR gate, if we have all the inputs are low, then output of OR gate becomes low, otherwise we will get output high. Already of every gates explanation I have given in my previous video, so please go through that. ठीक है. अगर आपको बेसिक गेट्स के या यूनिवर्सल गेट्स के, डिराइव गेट्स से आपको यही नहीं पता, बेसिकली सिंपल थिंग कि अगर आपको लॉजिक गेट्स के ट्रूथ टेबल क्या है नहीं पता है, एंड इफ यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ दैट, वो फंक्शन कैसे करता है, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू डू दैट. ओके, अदरवाइज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक बहुत सिंपल है. सिंपली आपको बेसिक थिंग्स पता होना चाहिए, तो वो आप देखो जाके, वीडियोस रेफर करो, देन इजली आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब का फंक्शंस कैसे हो रहा है. और जैसे इसके लिए आपको एंड और का फंक्शन आना चाहिए, एंड नॉट का आना चाहिए. ठीक है, तो हियर वी हैव गॉट दिस. तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में हमको देखो क्या मिला है, 3 1 एंड 0. ठीक है, यहाँ पे भी वी आर गेटिंग द सेम कॉम्बिनेशन. what we can say that therefore we can say left hand side, that is this जो NAND मिला है, it is equivalent to the bubbled OR. Hence De Morgan's first theorem is verified. Okay, here if you write first left hand side then right hand side, so it will becomes easy to you to identify. Okay, always go through the stepwise so that it will becomes very easy. ठीक है, compilation will be becomes easy to you if you will get any error. देखो कहीं मिस्टेक्स होता है तो वो सॉल्व करना इजी हो जाता है अगर आप प्रॉपर एक क्लीन वे में इसको लिखते हो तो. ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. आई होप De Morgan's first theorem is very clear to you. Now we'll proceed for the De Morgan's second theorem. ठीक है, De Morgan's second theorem का देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या, जैसे मैंने बोला था इसमें याद रखना आपको, एक का लेफ्ट हैंड साइड NAND होगा, दूसरे का नॉट. तो यहाँ पे NAND का हो गया. अभी जो दूसरा है a प्लस बी द कॉम्प्लीमेंट, ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, फॉर नॉट गेट. अब इसको जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट, ये बार को हटाओगे कॉम्प्लीमेंट सबसे, तो यहाँ पे a को सेपरेट आएगा कॉम्प्लीमेंट, b को सेपरेट कॉम्प्लीमेंट आएगा, एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस, इट इज डॉट. तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पता है तो आप राइट हैंड साइड इजिली लिख सकते हो. और इसको हम क्या बोलेंगे, बबल्ड एंड. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव नॉर गेट.
ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में वी हैव एंड गेट, डॉट मतलब एंड गेट है विथ इन्वर्टेड इनपुट्स, देयरफॉर वी कैन से इट इज नॉर विच इज इक्विवेलेंट टू द बबल एंड गेट। मतलब ये जो सेकेंड थियरम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर विच इज इक्विवेलेंट टू द बबल एंड गेट, जिसको हम ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब इसका स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट कैसे आप रीड करोगे। तो पहले यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉम्प्लीमेंट, देन एडिशन है, फिर वेरिएबल्स है, फिर इक्वल टू है, फिर राइट हैंड साइड में पहले डॉट कॉमन दैट इज प्रोडक्ट है, फिर कॉम्प्लीमेंट है और फिर वेरिएबल्स है। तो अब देखो रीड कैसे करोगे, सिंपली ऐसे करना है आपको एक्सप्रेशन से, तो आपको स्टेटमेंट रीड करने में कोई मतलब स्टेटमेंट याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है आपको, फर्स्ट यू हैव टू राइट स्टेट्स दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडिशन ऑफ द वेरिएबल्स इट इज इक्विवेलेंट टू द या इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, वंस अगेन देखो वही था ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडिशन ऑफ द वेरिएबल्स सी इज इक्वल टू द, देखो यहाँ पे इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द complement of the variable, to see product of the complements of the variables. So I hope it is simple to you. ठीक है, सिंपली आप एक्सप्रेशन से इसका डेफिनेशन लिख सकते हो इन अ सिंपल मैनर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे। ठीक है, जब आप डायग्राम देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डायग्राम में आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या था, a प्लस बी द कॉम्प्लीमेंट, एंड राइट हैंड साइड आपने इसी को सॉल्व किया था, तो क्या था a बार डॉट बी बार, ये आपका राइट हैंड साइड था। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नॉर गेट है, तो नॉर गेट का ड्रॉ कर दो यहाँ पे। ठीक है, 2 इनपुट्स है, इनपुट्स में 2 टर्मिनल है एन बी, एंड राइट द आउटपुट a प्लस बी द होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस राइट हैंड साइड में वी हैव 2 नॉट गेट, a बार एंड b बार। सो 2 नॉट गेट ज्वाइन करो, जिससे आपको क्या मिलेगा, a बार एंड b बार। 2 इनपुट दिया a एंड b, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉट गेट वी आर गेटिंग a बार एंड b का b बार मिल रहा है। देन डॉट है, मतलब ये दोनों नॉट गेट कनेक्ट करने के लिए विच गेट वी हैव, हियर वी हैव एंड, तो एंड ड्रॉ कर दो जिसमें ये दोनों का आउटपुट ज्वाइन कर दो, तो वो इसका जो आउटपुट होगा ये दोनों नॉट का, वो इसके इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इनपुट a बार मिला एंड को, दूसरा b बार मिला, और एंड में हम क्या लिखते हैं, डॉट लिखते हैं सारे वेरिएबल्स को कनेक्ट करने के लिए। सो हियर वी हैव गॉट, और इसको भी जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली लिखा था, शॉर्ट मतलब एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर दिया था ये पूरे का, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंड ड्रॉ कर दो, और ये दोनों जो नॉट गेट है स्टूडेंट्स, इसको वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस साइन, ये जो ए बी इनपुट है, ये आपको जो एंड गेट है उसको a बार एंड b बार मिलेगा, और तो हम लिख सकते हैं a बार डॉट b बार। ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, हम इसको ये जो डायग्राम है इसको इसकी तरह ड्रॉ कर सकते हैं, विच इज नोन एज द बबल्ड एंड गेट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे यू विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर द सेकेंड थियरम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ वी विल सी द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में भी वही चीज करना है आपको, जैसे कि देखो ये हमारा एक्सप्रेशन था, तो आपको पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है, तो 2 कॉलम ले लो, पहले 2 इनपुट है तो a एंड b, फिर क्या है a प्लस बी द होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये लिख दो आप। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है। देन राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 इनपुट है a एंड b, तो a एंड b ऑलरेडी हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, तो हम राइट हैंड साइड में उसको फिर से नहीं लिखेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हियर a बार एंड b बार इज देयर नो, सो यहाँ पे 2 कॉलम ले लो राइट हैंड साइड में, एक a बार के लिए और दूसरा b बार के लिए ले लिया। ओके, देन क्या करना है आपको, ये जो थर्ड वन है a बार डॉट द b बार, तो वो हमने a बार डॉट b बार यहाँ पे इजिली लिख लिया है। ओके, आई होप इतना क्लियर। अब बेसिकली यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ तक तो क्लियर है, किसी को यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, एनीवन? ओके, सो यहाँ पे बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज, सी अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, वी हैव रिटन द कॉलम, इन कॉलम्स वी हैव रिटन लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। नाउ हाउ यू विल सॉल्व, एज प्रीवियसली वी हैव डन, 2 इनपुट्स एट 2 raised to 2 दैट इज 4 कॉम्बिनेशन विल कम ऑफ 0 1, तो यहाँ पे देखो इन a में 2 0 2 1, यहाँ पे 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इट विल मेक इजी टू राइट दिस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये एक और गेट है ना, ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहिए तो एक कॉलम ऐड कर सकते हो a प्लस बी का, फिर जो भी a प्लस बी में मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली नॉर, अगर आपको नॉर का डेफिनेशन पता है तो आप डायरेक्टली नॉर गेट का करके 3 कॉलम्स में ऐड कर दो इसको लेफ्ट हैंड साइड को, बट इफ यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ नॉर गेट तो आप पहले और का कर लो एंड फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, नॉर मिल जाए, बिकॉज नॉर इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट, दिस वी नो दैट।
तो यहाँ क्या करोगे, नॉर का क्या डेफिनेशन होता है, if all the inputs are low then output becomes high, and if any one of the input or both the inputs are high then the output becomes low. ठीक है, अगर दोनों input, if all the inputs are low तो output क्या मिलेगा, high. if any one of the input is high or both the inputs high or all the inputs are high then output becomes low. ओके तो यहाँ पे अब देखो, हियर वी हैव ए बार बी बार. ए बार मतलब ये जो ए है उसका कॉम्प्लीमेंट, जहां 0 है वहां 1 लिख दो, जहां 1 है 0 लिख दो, तो ये मिल जाएगा. बी बार मतलब आपको बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, जो यहाँ पे बी लिखा है उसके कॉम्प्लीमेंट कर दो. ए बार डॉट बी बार स्टूडेंट यहाँ पे बोला है, मतलब इसका इसके साथ एंड करना है, डॉट दैट इज एंड. एंड क्या बोलता है, इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट बिकम्स हाई. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ए बार एंड बी बार में, तो जो सिर्फ जो हमारा फर्स्ट वन है यहाँ पे ही सिर्फ हमें बोथ इनपुट्स हाई मिल रहा है, तो इसका आउटपुट हाई हो जाएगा. एंड रिमेनिंग में देख सकते हो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे आइदर आपको 1 0 0 1 या दोनों 0, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है या एक भी इनपुट लो हो जाता है तो आपको आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. ठीक है, ये एंड गेट का फंक्शन है. सो वी हैव गॉट दिस. सो नाउ यू कैन कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड का जो यहाँ पे आउटपुट मिला है राइट हैंड साइड में जो मिला है इसके एक्सप्रेशन के रिस्पॉन्स में. सो वी हैव गॉट द एग्जैक्ट सिमिलर आउटपुट. ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्विवेलेंट टू द राइट हैंड साइड. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो आपको पहले क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है थियरम का. ठीक है, सॉरी, आइदर यू कैन राइट स्टेटमेंट ऑन द एक्सप्रेशन. तो आप एक्सप्रेशन लिख लो. आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड अगर पता है तो एवरीथिंग यू कैन राइट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आइदर नैंड होगा स्टूडेंट और नॉर होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पता है तो आप राइट हैंड साइड लिख सकते हो, उससे आपको स्टेटमेंट लिखने आ जाएगा. कॉमन टर्म्स को पहले रीड करो, फिर जो सेपरेट है उसको. तो दिस इज द लॉजिक टू रिमेंबर द स्टेटमेंट. तो ये हो जाएगा, फिर उसको आप एक्सप्लेन कर दो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है. देन यू कैन इजिली ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है, उसका डायग्राम ड्रॉ करने में क्या कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड का पहले ड्रॉ कर दो, इक्विवेलेंट टू द राइट हैंड साइड में ड्रॉ कर दो स्टेप बाय स्टेप. ओके, देन यू कैन राइट द ट्रूथ टेबल. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का. देन कंपेयर बोथ, इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम देन वी कैन से दैट हैंस डीमॉर्गन थ्योरम इज वेरीफाइड. तो हियर वी हैव वेरीफाइड द फर्स्ट एंड द सेकेंड थ्योरम. ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड थ्योरम दोनों प्रूव करके देखा है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. Okay, but still if you get any doubt regarding this you can ask me in the comment section box. Okay, and if you have understood this then please like my videos, comment, give your feedback, share this video and subscribe my channel. Okay, thank you.